Hello students, so today we look into the numericals of motion in one dimension, beginning with the first part of it. So first of all, we will take a look at all the formulas which we will require for doing the numericals here. So the first formula which you all know is speed is equals to distance by time, and then the second formula is average speed. Average speed will always be the total distance traveled divided by the total time taken to travel that distance. So formula is average speed equals to total distance by total time. Now when we come to average velocity, we have to take the total displacement divided by the total time. So remember, this also will be the total displacement, not only displacement, it will be total displacement divided by the total time. Then you know acceleration formula which you must have derived is acceleration is equals to v minus u by t, where u is the initial velocity at the beginning, and v is the final velocity, which is the velocity at the end, and divided by the time taken for that from the initial velocity to the final velocity point. And from here only, if you cross multiply and change the side, you get v is equals to u plus at. So for that first exercise, you will require only these numericals. Let us begin with the solving of the numericals now. So we start with a very first numerical, which is absolutely very easy ones, just teaching you how to convert from one unit of speed to the other. So the question is, the speed of a car is 72 km per hour. Express it in meter per second. You should be knowing that to convert kilometer per hour into meter per second, you need to multiply with 5 by 18. So we write here speed equals to 72 kilometer per hour. So we write here now 72 into 5 by 18, which converts it into meter per second. And so 18 4 is cancelled, and you get 4 5 is 20 meter per second. So this finishes this conversion. Take a look at the second one. Express meter per second into kilometer per hour. It is the reverse this one conversion. So to convert meter per second into kilometer per hour, we multiply with the reciprocal of 5 by 18, that is 18 by 5. So we write here speed equals to 15 meter per second, and then we write 15 into 18 by 5. So that will give us in kilometer per hour. So 5 3s are 3 and 18 multiplied is 54 kilometer per hour. So both the conversion, very important to remember, in many of the sums it will be required for you to convert and then work out the numerical. So let's see numerical number 3 and 4, which is also based in the conversion of the unit of speed. So question number 3 says express the following in meter per second. First one is 18 kilometer per hour, and the B part is 18 kilometer per minute, and the first one is 10 kilometer per hour. So we take this 10 kilometer per hour. So 10 is multiplied with 5 by 18 to convert into meter per second. 2 9s are 2 5s are. So that gives you 25 by 9. Now we will bring it into decimal. So 9 2s is 18. Decimal 7 is left. 70. 9 7s are 63. Again 7 is left. So 9 7s are 63. This will keep on coming like this. So we rounded off up to 2 places of decimal and write it as 2.78 meter per second. So this finishes the A part. Let us come to the B part. B part में बोल रहा है कि 18 किलोमीटर पर मिनट है, तो इसको अभी हम लिखेंगे 18 into 1000. क्यों? किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और फिर जा करके हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर मिनट है तो मिनट डिनोमिनेटर में है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो बाई 60 ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो गया, और ये सिंपल सा 300 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. So you can see they are given in different units. We will have to bring them into the same unit. तो हम लोग ऐसे करेंगे कि सबको मीटर पर सेकेंड में ही लेके आएंगे.
तो सबसे पहले वाला 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज नहीं करना है, उसको कॉपी कर देते हैं। 1 किलोमीटर पर मिनट जो है उसको अभी हम लोग चेंज करेंगे। पिछले थर्ड वाला न्यूमेरिकल में ऑलरेडी चेंज्ड है, कैसे करना है बता दिए हैं। तो ये यहाँ पर कट गया, A2 3 A2 50 अब 50/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए लिख देता है क्योंकि हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना है। तो 16 2/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब लास्ट वाला जो है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 5/18 करना है मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए। एक कैंसिल आउट हो गया, हमको मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला तो सबसे पहले हमको छोटा वाला वैल्यू लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें 5 मीटर पर सेकेंड है जो आया था 18 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको हम लोग लिख दिए। दिस विल बी स्मॉलर देन, इसके बाद आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और फिर लास्ट है 16 2/3 मीटर पर सेकेंड सबसे ज़्यादा है। तो उसका था क्या 1 किलोमीटर पर मिनट, जो ओरिजिनल दिया है उसी के टर्म में लिखा जाना चाहिए। ये हो गया हम लोगों का अरेंजमेंट। इस तरह से थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल भी कन्वर्शन ऑफ स्पीड यूनिट्स के बारे में ही था। सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 5 which says a train takes 3 hours to travel from Agra to Delhi with a uniform speed of 65 km per hour. Find the distance between the two cities. तो हम लोग को बहुत ही सिंपल सम से टाइम दे दिया हुआ है, स्पीड दे दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हम लोग को फॉर्मूला मिल जाता है डिस्टेंस is equal to speed into time। तो स्पीड है यहाँ पर 65 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 3 आवर दिया, तो कोई कन्वर्शन दरकार नहीं है। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 = 15, 3 6 = 18 प्लस 1 19 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। तो बहुत ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and the next 30 kilometer with a uniform speed of 40 kilometer per hour. So it is asked to calculate the total time of the journey and the average speed of the car. So time we will get by the formula distance by speed. That same formula, speed equals to distance by time. When you calculate time from there, it becomes distance by speed. And then for average speed of the car, we will have to take the total distance and the total time to be divided. Okay. So first of all, we will go for finding the total time of the journey. So for the first 30 kilometer, which is there, the time which I am calculating, I am writing it as T1. वो हो गया distance by speed. तो distance है 30 किलोमीटर और speed है उसका 60 किलोमीटर। तो दोनों कैंसिल होकर के आ गया हाफ आवर आ गया। ये पहला टाइम निकल गया, हम उसको अभी आवर में ही रहने देंगे। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए सेम फॉर्मूला और डिस्टेंस तो अभी नहीं बदला है, लेकिन स्पीड बदल गया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 दोनों जीरो कैंसिल होकर के 3/4 आवर आ जाएगा। अब हम लोग को टोटल टाइम ऑफ द जर्नी पूछा है, तो टोटल टाइम निकालेंगे, दोनों टाइम को ऐड कर दो तो दैट इज हाफ प्लस 3/4। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 × 1 हो गया 2 प्लस 3, तो ये आ गया 5/4। तो 5/4 आवर है। इसको अगर हमको मिनट में बदलना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। सो 12 15 = 60 कटेगा, 5 और 15 मल्टीप्लाई होके हो गया 75 मिनट मेरा निकल गया है टोटल टाइम फॉर द जर्नी। अब सेकेंड में पूछा है कि एवरेज स्पीड, सो दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है, फर्स्ट था 30 फिर था 30, दोनों को ऐड कर दो, और जो टोटल टाइम था वो हम लोगों के लिए था पूरा आवर में देखने से 5/4 था।
तो इसको अभी हम लिखेंगे यहाँ पर 5/4, मिनट्स वाला नहीं ले रहे हैं। ओके, ये 30 + 30 60 हो गया बाई 5। ये जो 4 डिवाइड कर रहा है ये ऊपर आ जाएगा, 5 काटेगा 60 को 12 टाइम्स, तो 12 4 ज़ा 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। तो ये सोल्यूशन ये दो न्यूमेरिकल का इस तरह से करने का है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 7. It says a train takes 2 hours to reach station B from station A and then 3 hours to return from station B to station A. It means it starts from station A, goes to B and then returns back to A. The distance between the two stations is given as 200 kilometer. We have to find first of all the average speed and in the second case the average velocity. So let us first go to write the formula for average speed. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर 200 किलोमीटर ए टू बी है। अभी ए टू बी गया और बी टू ए भी आया, तो इसका मतलब हो गया 200 + 200 डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो जाने का 2 आवर, आने का 3 आवर, तो 2 + 3 हो गया, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट गिव्स यू 80 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ गया। ओके, अब हम लोगों को देखना है सेकंड में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेगा तो हम लोग को लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पूरा जर्नी का बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है पता होगा, इसके लिए हमेशा हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखते हैं। तो स्टार्ट किया था स्टेशन ए से, बी गया और फिर वापस ए आ गया, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट सेम है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0 और टोटल टाइम 5 आएगा, तो 0/5 0 हो गया। इसको अब यूनिट कुछ भी दे दो, बात नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू 0 है। तो इसलिए याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। सो नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट, which says a car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer due east in 100 seconds. So we are given with this distance in kilometer, which you need to convert it into meter, and time is given as 100 seconds. So what is the speed of the car? We can get the speed, and in the second one says velocity of the car. You know that once we know the speed, velocity is speed along with direction. The direction is mentioned here. So magnitude of the answer of both of them will be same, but in the second part we will have to write the direction also. तो चलो उसको करते हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट में speed is equal to distance by time। तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, हम उसको कन्वर्ट करके 1000 मीटर लिखेंगे और टाइम जो है वो 100 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों 0 कट जाएगा, आंसर आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट में वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी जो होगा मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमको उसमें डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये इसका आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही सिखा रहा है कि वेलोसिटी निकाल रहा है तो डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and acquires a velocity of 10 meter per second in 2 seconds, find the acceleration. अब ये याद रखना है, कभी भी ए बॉडी बोलेगा starts from rest तो हम लोग का u का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझना है। ओके, फिर नेक्स्ट बोल रहा है acquires a velocity of 10 meter per second, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड।
और हम लोग को टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो हम लोग सब जो वैल्यूज दिया है लिख दिए हैं। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो v माइनस यू बाई टी। वैल्यू पुट करो, v के जगह में 10, u के जगह में 0 बाई 2, तो 10 2 से डिवाइड होगा तो मिल जाएगा 5। एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखना है कि ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलती नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही है इस वाला एक्सरसाइज। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगेन रेस्ट बोला है तो याद रखना है कि u का वैल्यू 0 है। अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया इन 0.05 आवर। अभी टाइम आवर में दिया, इसको सेकेंड से बदलना जरूरी हो जाएगा। और फाइंड द एक्सेलरेशन पूछा है, तो फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी लगेगा। तो पहले हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 180 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है 0.05 आवर में है। इसको हम सेकेंड्स में करेंगे तो इंटू 60 मिनट हो गया और इंटू 60 जो है सेकेंड्स हो गया। दो जीरोस के चलते ये 2 डेसिमल प्लेस हट जाएगा, तो इसका मतलब 5 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 5 ज़ा 180 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लिखेंगे v माइनस यू बाई टी लिखेंगे। v का वैल्यू जो है वो 180 है, u का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई टाइम 180 है, तो 180 को 180 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 10th का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 11th में आते हैं। 11th में बोल रहा है बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पहले वाला जो पार्ट है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है और ये 20 मीटर पर सेकेंड जो है फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज v। और ये टाइम दिया हुआ 3 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो पहले हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, फिर v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। तो अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का v माइनस यू बाई टी। तो v के जगह में 20, u के जगह में 50 और बाई टाइम के जगह में 3, तो ये आ जाएगा -30 बाई 3, तो ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान ये रखना है कि एक्सेलरेशन पूछा है तो हम लोग एक्सेलरेशन को मेंशन कर रहे हैं तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज अगर बोल देता कि रिटार्डेशन पूछता तो वर्ड रिटार्डेशन मेंशन करते तो माइनस साइन नहीं देता, ये याद रखना है। ये माइनस बताता है कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हुआ। सो नाउ टू क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, a toy car initially moving with a uniform velocity of 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग का u का वैल्यू जो है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ 2 सेकेंड मेंशन किया इसलिए हम बोले कि इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। और ये स्टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुका है। ठीक है, तो v विल बी 0। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन SI यूनिट्स। अब रिटार्डेशन पूछ रहा है SI यूनिट में, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हम लोग पहले वैल्यूज लिखते हैं। ये वैल्यू दिया हुआ है u का 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में 5/18 करके, तो ये कैंसिल हो करके 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर कम्स टू अ स्टॉप, मतलब v का वैल्यू 0 ले लो और टाइम जो है वो टाइम हम लोग को दिया हुआ है 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो हम लोग को रिटार्डेशन पूछा है, हम लोग पहले एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लिखेंगे v माइनस यू बाई टी। तो v के वैल्यू है 0 -5 बाई 2, इसका मतलब हो गया 5 को हम 2 से डिवाइड कर लो 2.5 आएगा, माइनस लिखना है
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है। तो जब रिटार्डेशन वर्ड लिख करके आंसर लिखेंगे तो हमको ये माइनस नहीं लिखना होगा, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखने का है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके मुताबिक आंसर देना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अ कार एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, सिंपली पूछ रहा है इंक्रीज कितना हुआ। तो दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन के जगह में दिया हुआ है 5 a वाला वैल्यू, और v माइनस यू हमको निकालना है, और टाइम के जगह में दिया हुआ है 2। तो हमको v माइनस यू इक्वल्स टू 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पूछा था इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो हम लोग को वैसे ही मेंशन करना चाहिए इंक्रीज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 14। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड। अब ये वर्ड रिटार्ड है, एक्सेलरेशन नहीं है। रिटार्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर उसको हम ए करके डिनोट करता है तो हमको उसको माइनस में लेना पड़ेगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the velocity after 5 seconds of applying the brakes? तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग को वैल्यूज जो दिया है, u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमको जो ये रिटार्डेशन दिया है तो हम उसको a करके मेंशन करेंगे, तो हमको -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है, और हम लोग को टाइम दिया हुआ है इस सम में 5 सेकेंड्स। तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। u का वैल्यू है 20 प्लस a का वैल्यू है -2 इंटू t का वैल्यू है 5। तो 20 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 10 हो गया। तो हम लोग का फाइनल वेलोसिटी निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सम में खरी यही ध्यान रखना है, रिटार्डेशन दिया तो a का वैल्यू को माइनस में लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन बोल रहा है कि 5 सेकेंड तक करता है, मतलब टाइम है 5 सेकेंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन पार्ट को मेंशन कर लो पहले, u is equals to 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू पुट करो, 5 प्लस a है 2, टाइम है 5, तो 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। तो दोनों सेम फॉर्मूला का यूज था, एक जगह रिटार्डेशन था, एक जगह एक्सेलरेशन था, और दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या करना है। So let us see now numerical number 16, which is the last numerical of this particular exercise, which is like this. A car is moving in a straight line with a speed of 18 km per hour and it is stopped in 2 seconds by applying the brakes. First, we have to find the speed of the car in meter per second. That this speed we have to convert into meter per second. The retardation we have to find. And then the third one, the speed of the car after 2 seconds of applying the brakes. मतलब brakes लगाने के बाद 2 seconds में वो कितना distance travel किया। तो हम लोग देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है
18 किलोमीटर पर आवर, और इसको बोला है चेंज करने के लिए इंटू 5/18 हो गया, तो 18 कट जाएगा, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड वाला पार्ट पूछा है कि रिटार्डेशन, तो हमको फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है कि स्टॉप्ड हो गया है, तो v का वैल्यू पहले 0 लिख दो, और टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड्स लिया, तो टाइम को लिखो 5 सेकेंड्स। अब हम यूज करेंगे a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, तो a का वैल्यू v का वैल्यू जो है वो 0 है, माइनस u का वैल्यू आया था 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन में पूछा है रिटार्डेशन, तो अगर हम लोग को यहाँ लिखेंगे हम रिटार्डेशन, तो अब हम माइनस को हटा के लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर पूछा है स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो थर्ड वाला पार्ट में अब टाइम हो गया है 2 सेकेंड्स, तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, तो u जो था वो 5 था, प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू ले रहे हैं इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा, और टाइम है 2, तो दैट गिव्स मी -2, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड हो गया मेरा इसका आंसर। तो ये तीनों पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल्स का एंड में आए हैं। आप लोगों को जरूर ये समझ में आएगा न्यूमेरिकल्स, इसको फिर से अपने से बनाओ परफेक्शन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।